Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices log modest gains. Sensex closes above 60,900 level. Nifty settles above 18,100 points. Rupee strengthens by 45 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices climb 3.5% to $97.50 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का दौर। सेंसेक्स 60,900 और निफ्टी 18,100 के स्तर के पार दर्ज हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 45 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव 3.5% की बढ़त से $97.50 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। वैश्विक बाजारों में के मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में आज उत्साह का माहौल रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.2% की बढ़त से 114 अंक बढ़कर 60,950 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की मजबूती से 64 अंक बढ़कर 18,117 पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। The key domestic stock indices today witnessed modest gains amid positive cues from the global share market. Sensex closed above 60,900 points, while Nifty settled above 18,100 points. Sensex added 114 points, or 0.19% to close at 60,950. Nifty also rose by 64 points, or 0.36% to end at 18,117. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index ended flat, while the small-cap index gained 0.41%. In the Sensex pack, 18 companies posted gains, while 12 logged losses. Bajaj Financial Services was the top gainer, as it added 4.6%, followed by Tata Steel and Ultratech Cement, as both surged by 2.5%. SBI added 1.5%. On the other hand, Dr. Reddy's declined by 1.5%. Infosys fell 1.1%. Hindustan Unilever slipped 1%, and Power Grid ended 0.8% down. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 sectors logged gains while 6 logged losses. Metal sector climbed 2.9%, while commodities index gained 2%. Services surged by 1.3%, and energy sector added 0.8%. On the other side, healthcare index declined by 0.7%. IT sector slid 0.4%. Tech and FMCG, both sectors fell 0.3% each. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,967 companies gained, while 1,487 companies fell. Shares of 131 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 45 पैसे के उछाल से 82 रुपए 44 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स 0.5% की गिरावट से 112 के स्तर के आसपास रहा। और कार्यक्रम पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Sharad, I hope you can hear us. A warm welcome to you on Market Mantra. We are in the process of connecting with our expert, Shri Sharad Kohli. Sharad, I hope you can hear us. Yes, I can hear you. Sharad, good to have you on the program. It would be convenient if you can get closer to the communication device by which you are able to hear us. I'm right next to the device, Arjun, and my greetings to all the listeners. Great to hear you, Sharad. Warm welcome to you in Market Mantra. Once again, we have a question from my co-anchor regarding the market performance today. शरद, किस तरह से आंकेंगे? बाजार निरंतर उत्साह में तकरीबन 61,000 ही सेंसेक्स हो चुका है, और अगर निफ्टी की भी बात करें तो वो 19,000 के आसपास पहुंचने को बेताब नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन के पीछे क्या माना जाए? क्या कंपनी जगत के बेहतर नतीजे सबसे बड़ा कारण है, या जो वैश्विक बाजारों के भी कुछ स्वस्थ संकेत नजर आ रहे हैं? दोनों का मिला जुला रुख नजर आता है। देखिए अमित, जब बाजार शुरू हुआ था तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्यू लेके और थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था और कंसोलिडेशन मोड में नजर आ रहा था। पर हुआ क्या कि बाजार का जो सेकंड हाफ था, और खासकर आखिर की तरफ आप जाएं तो वहां पर हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, जो कि आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को जो पोजीशंस होती हैं जो लोगों ने ले रखी होती हैं उसको वो स्क्वायर अप करके जाते हैं, क्योंकि बाजार का जो आजकल ओवरऑल लेंथ एंड ब्रेड्थ बना हुआ है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। और हम ऑल टाइम हाई के में हम लोग निफ्टी को ज्यादा फॉलो करते हैं। 18,604 मुझे याद है निफ्टी सबसे ऊंचे पे था, वहां से हम बहुत दूर नहीं है। और मुझे लग रहा है
जो भारतीय मार्केट्स को ये कहते हैं कि भारतीय मार्केट्स में बहुत करेक्शन आई, मुझे लग रहा है उनको ओवरऑल अगर वो देखें तो हम बहुत नजदीक हैं ऑल टाइम हाई के। और हम बाजार में पीछे जो रिजल्ट्स आए हैं अक्टूबर 7-8 के बाद से आज तक, ज्यादातर रिजल्ट्स कंपनीज के अच्छे रहे हैं। कुछ एक आईटी कंपनीज को अगर हम छोड़ दें, कुछ एक और कंपनीज को छोड़ दें, तो ज्यादातर रिजल्ट्स अच्छे रहे। तो ऐसा में होता क्या है कि मार्केट अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी लेता है। और जो आपने बात अमित आखिर में कही कि मार्केट जो रिजल्ट्स जिन कंपनीज के आते हैं उसके आसपास अपने आप को कंसोलिडेट करता है। तो आखिर में जो शॉर्ट कवरिंग आई, हमें जो 64 पॉइंट निफ्टी में उछाल दिखाई दिया, ये बिल्कुल आखिर में शॉर्ट कवरिंग और ये फ्राइडे की वजह से आई, क्योंकि आगे वीकेंड है। और एक बहुत अहम बात अमित जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा और बड़े बड़े स्ट्रांगली जोड़ना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ये शॉर्ट कवरिंग क्यों आई, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस समय बहुत फ्लूइड बनी हुई है। और अगर आप जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को और अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में टेंशन है, जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन है, चाइना ताइवान बहुत लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है, अमेरिका और चाइना का बना हुआ है, यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट इस समय बाकायदा जारी है, ये नहीं कि वो खत्म हो चुका है, ईरान और सऊदी अरेबिया और ईरान और यूएई के बीच में एक नया इरप्शन सुनने में आ रहा है। तो कुल मिला के हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स अगर आप मेरे से पूछें और मैं पूरी मार्केट का अगर एक ओवरव्यू दूं अमित, तो मैं ये दूंगा कि बाकी सारे फैक्टर्स, फेड ने रेट बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट किया हुआ था, पहले से सोच रखा था कि बढ़ेगा, तो ज्यादातर मार्केट उन सब बातों को भुला के आगे जाने की कोशिश कर रहा है। परंतु अब ये शॉर्ट कवरिंग जो आई तो वीकेंड पे अब लोगों को लगता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, पता नहीं वीकेंड में क्या हो जाए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट के आखिर में जिन्होंने बेच रखा था उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी, तो आपको आखिर में एकदम से तेजी देखने को मिली। और कुछ एफआईआई का निवेश भी पिछले 4-5-27 तारीख से मैं देख रहा हूं लगातार एफआईआई और एफपीआई पैसा लगा रहे हैं, निरंतर लगा रहे हैं, किसी दिन 1400 करोड़, किसी दिन 600 करोड़, 700 करोड़ के आसपास निरंतर पैसा आ रहा है। तो उस पैसे की वजह से आपको इसीलिए रुपए में भी तेजी दिखाई दी है। रुपया थोड़ा सा 83 रुपए से हट के 82 की तरफ बढ़ा है, उसमें थोड़ी तेजी आई है। तो एफपीआई, हालांकि वो आंकड़ा हम लोग 7 बजे के बाद एनालाइज करते हैं कि एफआईआई ने कितना पैसा लगाया, पर ये पक्का है कि पैसा कुछ आया है, रुपए की तेजी बता रही है। डॉलर इंडेक्स हालांकि 111 के आसपास घूम रहा था, इस समय 112 के आसपास है, तो कुछ पैसा उनका आया, कुछ शॉर्ट कवरिंग आई। इस वजह से आपको ये मार्केट में जो 64 पॉइंट की निफ्टी की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी में ज्यादा उछाल देखा। पर ओवरऑल जो मार्केट का लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसमें डिक्लाइन करने वाले शेयर ज्यादा इसलिए थे क्योंकि रिजल्ट्स के आसपास अब जो है शेयर्स वो फोकस कर रहे हैं। और हमने देखा कि कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने एयरटेल का नतीजा आए, वोडाफोन का नतीजा आए, वोडाफोन ने कुछ अपनी आरपू थोड़ी बहुत 128 से बढ़ के 131 आरपू हुई है। तो इस प्रकार मार्केट ये छोटे छोटे रिजल्ट को देख के उनके आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और यहां से आगे कुछ भी हो सकता है। अब मेरे से आप अगला सवाल अगर ये पूछेंगे आगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता था। देखिए कि आपने बात करी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो जितने भी देशों के बारे में आपने जो बात करी वो निश्चित तौर पे सही हैं। हम क्या माने, भारत के सामने अगर फौरी तौर पे चुनौतियां देखें कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल बना हुआ है, इसमें भी राहत नहीं है। उसके साथ साथ इस तरह की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं ऐसे दौर में जब कंपनियां हमारी अपने दमखम पे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये माना जाए या ये अनुमान लगाया जाए कि भौगोलिक परिस्थितियों में अगर कुछ सुधार होता है तो भारतीय शेयर बाजारों में जो फिलहाल ये जो धीमी चाल है, क्या बहुत तेजी की दौड़ देखने को मिल सकती है? बिल्कुल अमित, मैं यही बात कहने जा रहा था कि दो चीजें आपने महंगाई का जिक्र किया आपने, और महंगाई से निकल के आता है जो रेट्स दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फेडरल अमेरिका फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चिंता है मार्केट के लिए, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता है। दूसरी चिंता, मैंने भौगोलिक परिस्थिति जियोपॉलिटिकल बात करी आपसे, तो बहुत काबिले तारीफ बात है ये अमित कि हम इन दो फैक्टर्स के होते हुए भी, इन्फ्लेशन के होते हुए, मुद्रास्फीति के बढ़े हुए होने के बावजूद भी, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसके बावजूद, और जियोपॉलिटिक्स के बाद भी इन सबको भुला के मार्केट आज भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही अहम बात है और बहुत काबिले तारीफ है। और इसमें एक परिप्रेक्ष्य जो और हम जोड़ सकते हैं कि भारतीय बाजार जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था
इस समय दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह है। आप बाकी की अर्थव्यवस्थाएं देखें, आप अगर यूरोप में जाएं, आप अमेरिका में भी जाएं, जहां पर इन्फ्लेशन इस समय 8% से ऊपर बना हुआ है और फेड लगातार रेट बढ़ा रहा है, लगातार चौथी बार 75 बेसिस पॉइंट। और एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अमित, ये बहुत बड़ी बात है कि चौथी बार 75 बेसिस पॉइंट, मतलब लगभग 3% वहां पर रेट बढ़ चुका है पिछले 4 फेड के डिसीजंस में। और अगर मार्केट इस सबको भुला के और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है या यहाँ 18,100 के आसपास ठहरा हुआ है, ये बहुत काबिले तारीफ बात है और ये इन्वेस्टर्स का हौसला जताती है, एफपीआईज का भारतीय अर्थव्यवस्था पे विश्वास जतलाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से आगे चल रही है उसको बताती है। तो मैं समझता हूं बहुत तारीफ की बात है। यहां से तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर ये भौगोलिक परिस्थितियां, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जिन देशों के बीच में टेंशन का मैंने नाम लिया है, अगर ये टेंशन यहां से सेटल होती है तो मार्केट यहां से बहुत आगे भाग सकती है। पर अभी हम ऐसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हुए हैं अमित, जहां से मैं अगर इसको समराइज वे में या संक्षिप्त में बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि यहां से कुछ भी हो सकता है। यहां से मार्केट बिल्कुल ऊपर जाके और ऑल टाइम हाई को तोड़ भी सकती है, उसको तोड़ के हम 19,000 के आसपास भी जा सकते हैं, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और सेंसेक्स 65,000 के आसपास भी जा सकता है। और यहां से अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है भौगोलिक रूप पे, तो वो यहां से हम एकदम से नीचे जर्क भी आ सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए बड़ा ही कठिन परिस्थिति है। और जहां तक बात निवेशकों की है, हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि जब जब मार्केट डिप ले, आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी की तरीके से, एसआईपी के जरिए नहीं, एसआईपी के तरीके से, जो लोग मार्केट के शौकीन हैं, मार्केट में सीधा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यही सलाह है कि वो जब जब मार्केट करेक्शन में मोड में जाए, आप थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में, हफ्ते में, रोज, जैसा आपकी जेब अलाउ करती है, जो आपका निवेश का लक्ष्य है, उसको आप धीरे करके निवेश करते हैं। ट्रेडर्स जो हैं तो वो तो उछलने पे भी कमाते हैं, गिरने पे भी कमाते हैं। मार्केट में हम लोग कहावत बोलते हैं, देयर इज नो अपसाइड और डाउन, ओनली वन साइड, ट्रेडर्स के लिए बोला जाता है, विच इज द राइट साइड। बिल्कुल। वो उसका अनुमान लगा पाते हैं तो कमा जाते हैं, वरना उनको भी कभी कभी नुकसान होता है बीच बीच। शरद, कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने सहयोगी अर्जुन के साथ इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, तो अर्जुन का ऐसा अनुमान था और ऐसा मानना भी था कि बाजार जो इस दिशा पे है, शायद उसमें उतनी मजबूती न रहे और कहीं ना कहीं बाजार कम से कम 5% के आसपास तक तकनीकी सुधार या करेक्शंस के मोड में भी आ सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अमित, बहुत अच्छा आप लोग चर्चा कर रहे थे अर्जुन के साथ, बड़ी पते की बात आप डिस्कस कर रहे थे। पहले तो मैं ये प्रशंसा करना चाहूंगा। देखिए, बाजार ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जैसे मैंने बताया। देखिए, 2 एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझे, 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहले एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स कहते हैं। आपने मुद्रास्फीति की बात करी और वैश्विक मुद्रास्फीति की मैं बात कर रहा हूं। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, मैं ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात कर रहा हूं। तो मुद्रास्फीति से पूरा का पूरा विश्व परेशान है और मार्केट को इस बात का मालूम है। मार्केट क्या है, बहुत आगे सोच के चलता है। मार्केट को पता है कि इस समय मुद्रास्फीति बहुत हाई है। मार्केट को ये भी पता है कि इस समय ब्याज की दरें बढ़ेंगी, आगे भी बढ़ेंगी। अभी कोई ये नहीं कि आपको हॉकिश से डविश स्टैंड हो जाएगा, जिसको हम आजकल बहुत कॉमनली डिस्कस करते हैं। मार्केट इस सब को जानने के बावजूद भी हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भारतीय मार्केट की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे थे, जो अर्जुन के साथ आपने बोला, आप डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगर यहां से भौगोलिक रूप से अगर कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है, और हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में टेंशन बढ़ जाती है, कुछ मिसाइल्स चल जाती हैं, या रशिया यूक्रेन का वॉर एस्केलेट हो जाता है, बार बार न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो कहीं सच्चाई में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे मार्केट को झटका यहां से लग सकता है। और 5% क्या अगर ऐसा होता है तो मार्केट ज्यादा करेक्शन में भी जा सकती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं अर्जुन की इस बात से और आपकी इस बात से, पर वो निर्भर, जहां तक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं, वो मार्केट को, भारतीय मार्केट को नीचे नहीं खींच पा रहे हैं। मुद्रास्फीति भारत में भी अभी भी 7% से ऊपर बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज की दरें बढ़ा रहा है। और अभी हम देखेंगे, कल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है कि क्यों हम महंगाई पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे। भारत सरकार को बकायदा जवाब दिया है, जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। सरकार चाहे तो पब्लिक कर सकती है, पर कॉन्फिडेंशियल तो उन्होंने समझाया है बकायदा कि क्यों हम मुद्रास्फीति को, उस सब के बावजूद, अमित, मैं आपकी बात का सीधा जवाब, के बावजूद मार्केट अपनी जगह पे बकायदा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़ा हुआ है। तो अब मुझे लगता है ये जो करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये करेक्शन तभी आएगी अगर भौगोलिक परिस्थितियां यहां से आगे बिगड़ती हैं तो। अमित,
जी Sharad, you have touched upon multiple data points in your three responses so far. There is one data point which is a volatility index. It's quite low. In fact, it's 15.65. It's also called the fear index. And we are seeing the valuation in the index, which is the prices of the stocks listed, have gone up. What about the volumes? Is a low volume an indicator that the market is likely to correct, or are we seeing high volumes, which is indicating that the market is range bound, or it may break out and go up? Well, let me comment on the volatility index, the fear index as it is called, VI, we call it, in our market language. Why you are seeing the volatility index low? Because in the last few weeks, I would say, Arjun, the volatility has come down, especially in the last week. You were seeing, let me take example of Nifty. From 17,600 to 18,100 and 200, you've been seeing that the market has been steadily moving up. It has not been swinging wildly. Whereas in the week before that, or couple of weeks before that, I've got data of all the weeks with me. Market, a 200-point Nifty or a 1,000-point, 800 points in Sensex had become the new normal. But now in the last week, 10 days, we have seen that volatility has. So VI index is basically calculated after what is the range in which the market is moving. And that range indeed has narrowed down for multiple reasons. One reason is that on a day you find FPIs buying, you find DIIs selling. Next day, you find DIIs sold, the retail investor put in a lot of money. The third day, you find FIIs sold or they moderately invested, and the DIIs came to the rescue. So these are the three basic institutions, the FIIs, the DIIs, and the retail investors. So these three have been alternating between themselves to buy and sell, which is why you are seeing the market in consolidation mode. So from 17,600 to 18,100, the market has been fairly steady. And mind you, I'm talking of the last 1 week, 10 days. I'm not talking of before that. Before that, we were talking of volatility index being around 21 at that time. So the volumes are relatively low, and the low volumes, Arjun, the prime reason for low volumes is because there are a lot of investors, there are a lot of traders who are scared right now of the geopolitical situation, which I just spoke about when Amit was talking to me, and which I spoke in Hindi. I would like to reiterate that in English as well for our listeners who follow the English, comments more, that, the situation in North Korea, South Korea, I'm sure, you come from Prasar Bharati, All India Radio. Who knows better than you the news when North Korea, South Korea. Look at the tension. Look at Japan versus North Korea comments which are coming. Russia, Ukraine. Then what is happening in Europe? Sharad, I would just like to interrupt that response. Will come back after a short break. So please stay tuned on Market Mantra. Sure. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. We were with our market expert Shri Sharad Kohli discussing about market performance today. Sharad, you're mentioning about what is the right side, you have the upside, you have the downside for market participants, especially your traders. You've also mentioned about what's happening geopolitically and explained how important VIX is, and the volumes are in fact quite low in terms of the cash market transactions. My question, Sharad, is just simply this, that if you look at the markets right now, do you feel, what would you recommend to investors right now, especially where you have FIIs either shorting and you have DIIs covering, or you have DIIs shorting and FIIs covering? What happens if there's a sync, if both institutions short at the same time or cover at the same time? What happens to the valuation of the index? Yes, Arjun, you see the sync that you're seeing, I must first comment, is purely coincidental. There is no understanding between FIIs and DIIs, okay, we'll sell today, so you buy, or you sell, we'll buy. That is purely coincidental.
and this period of coincidence also comes by coincidence. So I think I'm stating something which is very interesting, that the period of coincidence comes by coincidence. It's not planned by anybody that, for 1 week we are going to sell, so you buy, or you're going to sell, we buy. This is a pure coincidence, which is why you're seeing the volatility index at low this time. But the volumes are low, as I said, because people are waiting for there are a lot of investors that I know, there are a lot of institutions that I know, of course I can't name them here, who are, on a wait and watch kind of strategy, because of the geopolitical situation. And before we went on a break, I was speaking about Iran and Saudi Arabia, which has been the new area where stress and tension is building up, which can turn out to be. And then also, we must also not forget, Arjun, about the word recession being spoken about by the international agencies, and coming from IMF, World Bank, and economic experts around the world, including me. I mean, I've been very, very vociferous about speaking about the word recession, because the way interest rates are going, the growth of the world economy, or, the American economy, or the Eurozone, and for that matter, India, everyone is impacted, because that's an economic principle. If you keep high interest rates, you compromise on growth. So I think the advice for investors is that they must, first of all, you should have a long-term view, because short-term, then what people do, Arjun, people do is, they come as investors and they become traders. You start as an investor and you feel, okay, my stock has done profit of, let's say, 100 rupees or 50 rupees, let me sell and get out. निश्चित तौर पे यही करना चाहिए कि आप एक निवेशक हैं तो निवेशक की भूमिका में रहें, और अगर आप एक शेयर ब्रोकर या ट्रेडर बन रहे हैं तो आपको अपनी सीमाएं वहां पे निश्चित तौर पे पहचाननी चाहिए. चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजार पे. एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती रही. हांगकांग का हैंगसेंग 5.4% के उछाल से बंद हुआ. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी 2.4% की बढ़त में रहा. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स में लगभग 0.5% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई. जापान का निकेई में भी 1.7% का नुकसान रहा. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.5% से 1.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए. Moving on to the U.S. markets, U.S. stocks closed lower for a fourth consecutive session yesterday as economic data did little to alter expectations. The Fed Reserve would continue raising interest rates for longer than previously thought. The Nasdaq Composite declined 1.7%, the S&P 500 fell 1.1%, and the Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.5%. Sharad, we are seeing the U.S. dollar index again coming down to 111 after it went up to 113. How important is that when you're looking at the valuation of other currencies, especially the Asian market, against the US dollar? And do you expect the central bank to intervene as they have done today? Well, if you look at the dollar index constituents, Arjun, we're looking at the Canadian dollar, we're looking at the Swedish krona, we're looking at the euro, we're looking at the yen. So, if we're looking at the British pound. So, if you look at I think the rising interest rates will continue to put pressure on the dollar index. So I think the outflow of capital in terms of US dollars and the demand for dollar is going to remain high for some time. Because every time, if you're looking at a 4% or a 4.5% interest of bond yield in America, by the way, the bond yield is 4% plus at this time, then if I'm an investor in America, why would I want my funds to be parked in another market in a debt fund? By the way, I would like to give a very interesting information here, that whenever we speak of outflow of funds from a country like India, because of which the rupee comes under pressure, we must not forget that these funds are not just being pulled out from the equity market. There's a lot of funds which move out from the debt market. So on a day when rupee is under pressure, and you find that there are a lot of such days when the FPIs have put in money, but the rupee is still under pressure. This means they have pulled out money from the debt market, not just from the equity market. Right. I think the pressure on the currency is going to continue to remain, because the way interest rates are rising in America and some of the most developed part of the world will exert pressure on the dollar index, and I think the rupee will also. So RBI will have to constantly keep stepping in by way of currency swaps to maintain the value of rupees, which it has been doing over the last several months, Arjun. Sharad, we are seeing the U.S. Treasury yield for 1 year and 2 year at 4.7 to 4.8%. We're talking about how money moves from one type of security to another type of security. And there is arbitrage also. My question is, the Hang Seng index in the Asian market went up by 5.4%. You're seeing a short covering there as well, like FII, FPI interest in our markets right now?
Well, I must tell you that the Hang Seng, sometimes doesn't behave with the rest of the world, because Hang Seng is principally, controlled by Chinese investors and a lot of people from China. Hang Seng is no more the same it used to be a few years ago. So you'll often see Hang Seng not syncing with the rest of the world stock market, because China has its own system, it's not also perfectly transparent in terms of the financial markets. We all know that. So therefore, Hang Seng, I really do not relate it to rest of the markets. As far as Japan, if you see the Nikkei or you see the Straits Times in Singapore, you will often find Hang Seng going different way, because there was a lot of news in the American stock market. There was a massive sell-off of the Chinese stocks in the American market. Despite that, Hang Seng went up. So I really cannot fully certify the movement of Hang Seng in terms of syncing with the rest of the world markets, Arjun. Well, let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices today climbed around 3.5%. Crude prices rose as the dollar eased and supply risk lingered, though recession fears and China's COVID outbreaks kept a check on prices. In intraday trade, Brent crude was trading at $97.60 per barrel, while WTI crude prices were at $91.35 per barrel. Even though our discussion has been currency related and their valuation, what about demand and supply? Why is it that oil prices are moving so high once again? Well, I'll again reveal a very interesting news which came from China. There was a screenshot shared by somebody in China, and the Chinese market went gung-ho about it, and the authenticity of that screenshot wasn't known. And in that screenshot, it was written that all the towns which are currently under lockdown in China will be opened very soon. So that is another reason why you saw Hang Seng going up. But overall, global demand is going to be affected, although the American job market is doing well. But you see, when the interest rates keep rising, you cannot expect demand to be holding for a very long time, because the whole intention of hiking the interest rates, Arjun, we all know the principle of economics, is to subdue the demand, to probably reduce the supply of money. So every time there is an effort made to reduce the supply of money, you cannot expect demand to be holding for very long. And if these geopolitical factors become active, you will see further suppression of demand and consumer confidence being affected directly, Arjun, for that matter. नजर डालते हैं सराफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 305 रुपए की बढ़त से 50,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 775 रुपए की मजबूती से 59,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती से $1,654.70 प्रति औंस और चांदी भी बढ़त से $19.90 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। शरद, ऐसा माना जाता है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोने की मजबूती कहीं न कहीं या चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन सोना भारतीय बाजारों में क्या ये माना जाए कि यहाँ पे सिर्फ घरेलू कारक हैं, जिस तरह से कि अभी वैवाहिक सीजन शुरू हो रहा है, या कुछ और भी कारण नजर आते हैं सोने की चमक के बारे में? अभी आप देखिए तो बहुत कंसोलिडेटेड चल रहा है, 50,000 और 51,000 के बीच में बहुत समय से घूम रहा है। और मुझे लग रहा है कि सोना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीछे धनतेरस था, उसके बाद दिवाली थी, और अब मैरिज सीजन यहाँ पर शुरू हो रहा है जी। डोमेस्टिक फैक्टर्स पर डोमेस्टिक 500-700 रुपए तक प्ले करते हैं जी। शरद, कार्यक्रम में समय की बाध्यता है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic stock indices log modest gains. The Sensex closes above 60,900 level. Nifty settles above 18,100 points. Rupee strengthens by 45 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices climb 3.5% to $97.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.